While the science of running teaches us how we move, it is the spirit of running that explains why we don't stop. Welcome to My Running Story, a podcast series where we celebrate every person's purpose behind every stride. I am Ayushi Dolakia, your host for this episode, and I'm extremely excited to have two exceptional guests joining me here today. First up, I have Dr. Garima Savalia, Chief Medical Administrator at KD Hospital and a visionary leadership in medical and clinical excellence. She truly believes that endurance, dedication, and discipline is the way to success. Welcome to the podcast. Very Hello. excited to have you. Hi, thank you. Joining with her today is Mr. Meghal Chakravarti. इनके बारे में जितना बोले उतना कम है. A fitness instructor, a Chetak Commando instructor, Special Gujarat Forces, kickboxing and a boxing champion, more than 100 marathons, two-time full-time marathon finishes, a man who truly lives and breathes endurance. हम लोग as runners we always focus on dedication and discipline, but today our two guests will explain the importance of healthcare and science and fitness. I'm extremely excited to dive into this, so let's move on to it. Welcome, doctor. Welcome, Eagle sir. So excited to have you. Same here. I'm going to start with asking, at what point of life आपको पता चला कि fitness is going to be an extremely important part of my journey? Doctor. So for me, fitness is more about physical as well as mental health. Because if you are fit, healthy, but you are not fit mentally and you have psychological traumas and problems, so you can't enjoy your life. So enjoying your life, you have to be fit from mentally and physically. So in the initiation, in my like in my childhood, my mother was a player. She was a hockey player. She is right now 65 years of old, so it must be in 1970s or 60s she was the national hockey player. Wow. And since childhood I was also a national player for badminton, so I know what is the importance of fitness and sports. Right. And after that I pursue my fitness journey with some sports, some maybe gym, maybe yoga, by running and somewhere else, as well as my medical journey. For biomedical we were pushing on our mental health as well as our knowledge, and with physical we were pushing on our physical strength so that we can give a better tomorrow to India. डेफिनेटली हम वो आप मेडिकल पे डेफिनेटली और जाएंगे, बातें करेंगे, बट पहले सर आपको कब लगा कि फिटनेस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी? फिटनेस का मुझे पहले से शौक तो था। जब मैं 10 साल का था तब ब्रूस ली की मूवी देख देख के मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट करना है। तो तब से मैंने फिर किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया, मेडल लिया और फिर धीरे धीरे पता चला कि ये लाइफ में फ़िटनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेल्फ डिफेंस में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज उसको ही मैंने अपना फ़िटनेस मंत्र बनाया है। बॉक्सिंग भी कर लेता हूँ, जिम भी कर लेता हूँ, मैराथन भी करता हूँ और ये मेरा फ़िटनेस फंडा रहा है पहले से 10 साल की उम्र से। और अभी मैं खुद फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो काफ़ी लोगों को मोटिवेशन भी देता हूँ, फ़िटनेस ट्रेनिंग भी देता हूँ और फिट रहने का मंत्र देता हूँ लोगों को। सर आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया, आपने मैराथन की जर्नी बहुत ही अर्ली ऑन से चालू की। हमने बात किया 2011 में आपने आपका जब पहला किया था, उससे लेके जब आज 2025 में देयर इज़ बीन सच अ ह्यूज गैप। तो आपको रनर्स के माइंडसेट में, उनकी ट्रेनिंग में या आपके खुद के ट्रेनिंग में आपको सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगता है? देखिए, देखने जाए तो रनिंग तो हम जब बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करते हैं तो रनिंग तो हमारा मेन स्टेमिना के लिए होता है। तो हम लोग करते थे, ऐसा नहीं 2-2 घंटा, 3-3 घंटा रनिंग करते थे। पर जैसे जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में मैं आया, काफ़ी सर्टिफिकेशन किए मैंने। सर्टिफिकेशन के बाद पता चला कि भी रनिंग एक मैराथन भी ऐसे होता है। जी। तो 2011 में जब मैं तलवरकर में एज ए चीफ फिटनेस इंस्ट्रक्टर था, तब वहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग में आते थे उस टाइम के पुलिस कमिश्नर साहब SK साइकिया साहब और अतुल करवाल साहब। तो हम लोग ऐसे ही जनरली जस्ट ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेघल तू किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग चैम्पियन है, तो अहमदाबाद में मैराथन भी होती है। बोला सर मुझे नहीं पता है। तो उस टाइम अहमदाबाद रिलायंस साबरमती मैराथन हुआ करता था। तो बोले तू हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में हो के सबको ट्रेनिंग देता है, हमको भी ट्रेनिंग देता है, तो तुझे भी मैराथन करनी चाहिए। तो साइकिया सर और अतुल करवाल सर के मोटिवेशन से मैंने 2011 से फर्स्ट मैराथन मैंने स्टार्ट किया। तो अभी तक इंडिया की कोई मैराथन मैंने बाकी नहीं रखी है और
काफ़ी सारी मैराथन मैंने 100 से ऊपर मैराथन की हुई है, और काफ़ी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे पर्सनल क्लाइंटों को, डॉक्टर्स को, मीडिया कर्मियों को, सबको मैंने फ़िटनेस और मैराथन के लिए मोटिवेशन भी दिया है। तो पहले से अभी मतलब देखा जाए तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट है फ़िटनेस और मैराथन में, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यस। नहीं, दैट वाज इनक्रेडिबल एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। सर ने अपनी स्टोरी बताई, मैम आपने बताया कैसे फिटनेस हैज़ बीन रनिंग इन योर फैमिली एंड आई एम श्योर इट ऑल्सो कम्स इन टू योर जीन्स। Yeah, my तो kids. व्हाई डोंट यू शेयर आवर व्यूअर्स व्हाट योर फिटनेस रूटीन इज लाइक? So, for me, I'm not a marathon runner, but I believe in health and I believe in fitness. In medical profession, I am been in medical profession since a decade, and since last 10 years, I am related with marathon. So, and for with different organizations, I have been a medical partner in Mumbai Marathon. So, I was there as a back support for the healthy, like for the health for the marathon runners. So our duty is to remain as a pillar, so that any Right. marathon runner, if there is any casualty, any hazard, so being doctors, being the team of the pillars, we can protect their life. The same way when I'm in Ahmedabad, so I've been last year also we were the partners for Adani Marathon, as well as the organization I'm working with, we are also having the marathons. So more or less we are aware about what the runners require before marathon. There are lots of medical fitness tests which are required for the runners, as well as their mental fitness, their psychological fitness, because we have seen many a times a person who is running on daily basis doing practices since many months, but at the time of marathon he collapses. Absolutely. Then there the questions are being asked ki ma'am hum to training kar rahe the, everything was fine, but at the day of the marathon it happened. The reason is that on daily basis पे आप run नहीं कर रहे हो, आप compete नहीं कर रहे हो, तो there is a stress on your mental health, and due to that stress sometimes you collapse because your heart is taking the pressure of your physical health as well as your mental health also. So when you are preparing for some marathon or any competitive sports, you need to learn that कि आपको अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा. Absolutely. Like when we do studies, तो हम डेली रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम तक आने तक we know everything. The same way when we are preparing ourselves for any sports, any run, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है. एंड द इंडिकेशन ऑफ फटीग, टायर्डनेस, द बॉडी इज गिविंग यू द सिग्नल टू टेक सम रेस्ट, हैव सम गुड स्लीप, have some hydration, have good food, balanced diet. Just not only protein, you require carbohydrates, microelectrons, multinutrients, and different many things. So being a doctor, being a leader, a healthcare leader, our duty is to keep ourselves healthy, as well as we promote all these things for our patients also. So when these marathons happens and our patients comes to our OPDs and tell us ki we are going to participate in this marathon, we feel proud. That time we think कि like इस दिन के लिए हम लोग ये मेहनत कर रहे थे. डॉक्टर यू रियली टच्ड अपॉन सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई विल टेक अप ऑन दैट. आपने जिस तरह से बताया कि मैं रिविजन की कितनी ज़रूरत है किसी एग्ज़ाम के पहले भी, सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ प्री सीजन ट्रेनिंग? what do you share to your patients or even our viewers, what would you like to say कि प्री सीजन के टाइम पे उन्हें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए या कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए? So ma'am, I will say कि slow and steady you win the race. Daily, like if I start a run, I want to do a run next year marathon, so then I have to start the journey today itself, maybe 10 minutes, 50 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Sir maybe give more explanation how technically we should go about it, but slowly and steady, because you need to train your muscles. Like we are giving training to our brains for the exams and the different competitive exams, so that we can take the stress of that exam. The same way we have to take care of our bones and the muscles. हम सोचें कि 1-2 महीने की तैयारी के बाद हम मैराथन रन कर लेंगे बिकॉज आई फील गुड, आई लुक गुड, आई लुक फिट, आई एम रेडी फॉर मैराथन. इट्स नॉट लाइक दैट. Absolutely. You never know what is happening inside your body. To making your bones and muscle to fit for that day, you have to run on daily basis. You require a technical, like a professional trainer, maybe a instructor, like sir is there, a instructor who trains you कि कितना आपको किलोमीटर दौड़ना है, उसके साथ आपको कितना हाइड्रेशन चाहिए. More important is that what like medical fitness checkup you require, because sometimes it's happen in different marathon, casualties happens, fractures, ankle pain, and all these things are small things, like overrated things. Yeah. More about is the when the casualty happens, patient goes to ventilator. Yeah. There are MIs,
मायोकार्डियल इन्फेक्शंस आर हैपन एट द टाइम ऑफ मैराथन, एंड उन लोगों को होता है जो कब से दौड़ रहे हैं। तो इट शोज़ यू कि आपकी बॉडी एक लिमिट तक ही स्ट्रेस को झेल सकती है, उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो यू नीड टू बी फिट फॉर दैट, यू नीड टू हैव सम मेडिकल टेस्ट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, बिकॉज रूटीन लाइफ में आप दौड़ रहे हो दैट इज डिफरेंट, बिकॉज मॉर्निंग में वॉक करना इट्स वेरी like refreshing thing, we Absolutely. feel fresh the whole day, but on the day of marathon you are competing with 1,000 people, and we say कि we are not competing, we are doing for fun, but it's human tendency. Yeah, it comes. we everybody wants कि मैं एक साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैराथन में मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक तो आना चाहिए। नहीं, definitely. सो उस स्ट्रेस के लिए आपको अपने आप को रेडी करना है। सो मेंटल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको डेली बेसिस पे करने से आएगी। सो प्री सीजन लाइक फ्यू मंथ्स बिफोर यू स्टार्ट, you take the trainings under the instructors and the trainers, because they will tell you what kilometer, how you have to run, at what time you have to run, how much hydration you require. डेफिनेटली। कमिंग टू यू सर, उन्होंने अपने वर्क रूटीन्स के बारे में बात किया, किस तरह से लोगों को स्टार्टिंग से ही ट्रेन करना चाहिए। अगर आप सर का स्केड्यूल सुनेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। सर ऑलमोस्ट वेंसडे पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 to 10 kilometers, सैटरडे ही हैज़ 25 to 30 kilometers, एंड ऑल्सो एवरी डे कार्डियो फॉर 35 minutes. दैट्स एन इंटेंस स्केड्यूल दैट यू फॉलो। तो आपके जो आप जिनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, क्या आप उनको भी यही सेम रूटीन देते हैं? हाँ, वो तो है, क्योंकि देखिए कि जैसा मैडम ने बताया कि अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसकी स्टडी के लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। जी। जैसे मैराथन या फिटनेस जो ट्रेनिंग है उसमें भी ऐसा ही है कि काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि मैराथन करना है कुछ भी करके, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हार्मफुल है, क्योंकि मसल डैमेज हो सकते हैं, लिगामेंट डैमेज हो सकते हैं, आपके कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो उसके लिए भी हर दिन दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे मैराथन, अगर मैडम ने बताया कि अभी आ रही अदानी मैराथन समझो, और उसमें करना है तो पार्टिसिपेट किया और मैराथन कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। जैसे हफ्ते में 3 दिन बाद रनिंग कर लिया, जैसे 5 किलोमीटर कर लिया, फिर तीसरे दिन आपने 10 कर लिया, फिर 15 कर लिया। उसके साथ साथ डाइट का और फिटनेस ट्रेनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैडम ने बताया कि बैलेंस डाइट करना ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी रनर क्या करते हैं कि वो अपने दिमाग के सिग्नल को नहीं समझते, राइट। बॉडी कब पानी मांग रहा है, कब वर्कआउट मांग रहा है, वो सब पता नहीं होता है। तो वो सिग्नल को भी समझना होता है, हाइड्रेशन भी लेना ज़रूरी है। और एवरी डे अगर समझो कि आप फिटनेस ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो तो आपके मसल्स और लिगामेंट आपको सपोर्ट करेंगे ही नहीं रनिंग के लिए। तो उसके लिए आपको 35-40 मिनट एटलीस्ट स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग, AQR ड्रिल्स, वो सब करना पड़ेगा, जब जाके आप मैराथन 21 हाफ मैराथन के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। और मेरा स्केड्यूल देखने जाए तो मैं अर्ली तो नहीं बोल सकते, रात को 2 बजे उठता हूँ मैं। सुबह 2 बजे उठ के वही नहा धो के पूरा, मैं हनुमान जी में बिलीव करता हूँ, हनुमान चालीसा पाठ करके मेडिटेशन करता हूँ, फिर मेरे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ सुबह 4 बजे। और एवरी वेडनेसडे मैं 8 to 10 किलोमीटर रन करता हूँ। और एवरी सैटरडे सुबह 3:30 बजे मैं रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो 25 से 30 किलोमीटर मेरा रनिंग होता है। और मेरे साथ मेरे क्लाइंट भी है मीनाक्षी जानी करके, वो भी सेम मेरे जैसे ही है। वो खुद 4 बजे उठते हैं और वो भी मेरे साथ डेडिकेटेडली रन करते हैं। काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे नीरज बड़गुजर साहब है, कंट्रोल PI है सुरेश चौधरी साहब, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो मेरे साथ ट्रेन होते हैं, रनिंग भी करते हैं, और काफ़ी सारी 50-60 मैराथन भी वो कर चुके हैं क्या मेरे बात साथ है। साथ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी स्पोक अबाउट सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स के न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, एवरीडे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट इस सब का बेस है कि मोटिवेशन होना चाहिए। एवरी डे यू शुड गेट दैट फीलिंग दैट आज मैं जाके प्रैक्टिस करूँ। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड एवरी डे? मैं सबको वही बोलता हूँ कि एक फ़िटनेस को जब तक आप अपने जीवन का मंत्र नहीं बनाओगे, जैसे आप उठे, शावर लिया, नाश्ता किया, ऐसे जैसे आप रूटीन नहीं बनाओगे ना, तब तक फिटनेस आप कर ही नहीं सकते हो। दूसरा कि आपके बैक माइंड में होना ज़रूरी है कि नहीं मुझे फ़िटनेस करना है। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, मैंने देखे मेरे ये 20 साल की फ़िटनेस की करियर में, 20 साल तो नहीं बोल सकते, 96 से टिल टुडे, 1 महीना किया, मोटिवेशन आया, फिर चले गए। पर मोटिवेशन के लिए एज ए अच्छे इंस्ट्रक्टर का भी होना ज़रूरी है, जैसे कि भी पुश करे कि भाई आज 10 रेपिटेशन करना, 10 नहीं हो सकते सर, और होंगे, ऐसा करके मोटिवेशन दे सकते हैं। तो मोटिवेशन तो ज़रूरी है ही। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, समझो आज मेरे क्लाइंट या मुझे खुद को अगर 30 किलोमीटर रनिंग करना है, तो मैं आज शनिवार है, समझो 30 किलोमीटर किया, अगले शनिवार के लिए मैं मेरे बैक माइंड में डाल देता हूँ, अपने आप को खुद को मोटिवेशन करना हो कि मेघल
अगले हफ्ते 30 किलोमीटर करना ही करना है। तो सेल्फ मोटिवेशन भी होता है और कोच का भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई Definitely. अपने क्लाइंटों को एकदम एग्रेसिवली मोटिवेशन दे और फिटनेस के लिए और प्रमोट करे। Coming to you, ma'am, हमने in recent times we have seen that people have really shifted on to having a balanced diet, home cooked food, and a lot of trends have started to come in. And हम इस टाइम और जनरेशन में है जहाँ पे वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी सी ऑन इंटरनेट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमें बताते हैं। तो according to you, what would you say is the correct balanced meal that anybody on a regular basis or somebody who's really into fitness should follow? So basically, every person's meals is decided by their BMI, Right. like basal metabolic index there is, and that is different for each and every person. You should be aware about that, and according to that your calorie counts are finalized. So you, if you are in run or you are in fitness, normally people don't do that. हम लोग अपना calories नहीं routine में count करते और required भी नहीं होता क्योंकि routine life जी रहे हैं. But the people who are concerned about the fitness, who are concerned about the calorie counts, they need to know कि how much carbohydrates, protein, micronutrients and fats you are required. तो आपने कभी सुना होगा कि जिमिंग करते हैं तो प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल डाउन कर दिया, कीटो डाइट पर चले गए हैं. बट यू नेवर नो जब आप ये सब कर रहे हो तो आपकी बॉडी को फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा. दैट इज ऑल्सो इसेंशियल. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस डाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन जरूरी है. तो अभी ऐसा हो गया है कि जिम शुरू किया तो मैंने प्रोटीन शेक चालू कर दिया, मैं प्रोटीन डाइट कर रहा हूँ, मैंने कार्बोहाइड्रेट सारे बंद कर दिए, मैं दिन में एक भी रोटी नहीं खाता, खाली पल्सेस, प्रोटीन शेक. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. Yeah. At the end your muscle will suffer, and at the end the fats and carbohydrates, if you will not take, you will not get the energy. So energy foods are there are bodybuilding foods. So according to that you have to create your diet, and there are professional dietitians. Absolutely. They prepare your diet plan as per your body needs, and according to that we should go ahead. Because rather than following Instagram पे किसी ने बोल दिया ये खाना चाहिए, Facebook पे बोल दिया ये खाना चाहिए, we should take that technical people who have studied a lot about that and they have that knowledge. No, definitely. In a space like this, while people think that running is just a mere sport, but a lot of factors come into play, and having professional guidance is extremely important. important. And so you have been giving guidance at special forces. You have so many different people that you train, from our commandos to police officers. What is the kind of change that you have seen from the time that you started and to very recently? पहले जब मैंने 96 में जब स्पोर्ट्स चालू किया था, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, तो बहुत कम लोग खेलते थे कि ये बहुत डेंजरस गेम है, इसमें तो जान भी जा सकती है. हाँ, जान जा सकती है, मैं मान रहा हूँ, पर अगर आप प्रॉपर ट्रेन करोगे अपने आप को, ऐसे फिजिकली, मेंटली आप फिट करोगे तो आप कर सकते हो. और जब मैंने चालू किया था तब बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे फिटनेस में ले लो, मैराथन में ले लो, या बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग. अभी 2011 में 11 से लेके अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे मैं काफ़ी ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुका हूँ. उस टाइम बहुत 10-12 लोग, जैसे करवाल साहब है, अनीता मैडम है, मोहापत्रा साहब है, फिर साइकिया सर है, ऐसे लोग ही ट्रेन करते थे. पर उसके बाद अभी आप देखने जाओ तो काफ़ी सारा पुलिस डिपार्टमेंट में मोटिवेशन मिला है. और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ फिटनेस के लिए, कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे फॉरेन में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में जितने ऑफिसर फिट है, मैं भी उनको ऐसे फिट कर पाऊँ. तो वो मोटिवेशन को लेके काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए और काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ने मैराथन भी चालू किया है, फिटनेस ट्रेनिंग भी चालू किया है. और चेतक कमांडो की तो बात आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एलिट फोर्स है, गुजरात स्पेशल फोर्स है. तो उनका फिटनेस लेवल तो एक एक्सट्रीम लेवल होता है. और उन्होंने भी काफ़ी सारी मैराथन्स मेरे साथ की हुई है. और उनका ट्रेनिंग का स्केड्यूल तो ऐसा होता है कि 10 किलो का वेट लेके, वेपन लेके रन करना होता है. तो उस टाइप की अलग अलग ट्रेनिंग भी है. मैं अभी पूछने वाली थी कि उनकी ट्रेनिंग के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके, बिकॉज ये एक्सेस तो पहले कभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने में कि कमांडोज या स्पेशल फोर्सेस किस तरह से ट्रेन करते हैं. स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग एक्सट्रीम लेवल होती है. जैसे नॉर्मल ट्रेन करता हूँ ऐसे नहीं होता है, वो एक्सट्रीम लेवल अलग अलग वेरिएशन में उनका ट्रेनिंग होता है. डिपेंड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, तो उनका डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होता है. राइट. लॉन्ग रनिंग हो गया, 20-25 किलोमीटर रनिंग हो गया, फिर एंड्योरेंस में समझो 1-1 घंटा पुशअप्स पे होल्ड करा दिया. तो एक्सट्रीम लेवल उनका होता है, क्योंकि उनको फिटनेस के साथ, समझो कोई मिलिटेंट यहाँ पे आ गया तो उनको वेट लेके भी अगर जाना है, वेपन लेके, वो तो
उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग होता है, विगरस ट्रेनिंग होता है, जैसे रोप क्लाइंबिंग हो गया, वॉल क्लाइंबिंग हो गया, फिर वेट्स लेके दौड़ लिया, ऐसे जी। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है उनकी। नहीं, हमारे हीरोज़ फिट रहे वो, और हम सबको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एंड टॉकिंग अबाउट आवर हीरोज़, अदानी अहमदाबाद मैराथन इज़ रियली कमिंग अप विद सपोर्टिंग अ वेरी स्पेशल कॉज Special विच इज़ रन फॉर आवर फाइटर्स। Fighter. तो आप उसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से डॉक्टर? मैम आई वुड से कि कोज इज़ ऑलवेज बिगर देन इवेंट। इवेंट्स होते रहेंगे बट द कोज जिसके लिए हम ये मैराथन कर रहे हैं दैट इज़ ऑलवेज बिगर। एंड आई थिंक दैट्स वाई पीपल आर मोर कनेक्टेड टू अदानी मैराथन, because it is spreading the awareness for health as well as it is promoting our the line of safety, the soldiers you are promoting that also because they need motivation. Yeah. like जय जवान जय किसान का नारा हमें सबको पता ही है, but in daily routine what we are doing for them I don't know. like when they are fighting at the borders, like right now कश्मीर में हुआ, कहाँ सब जी। जगह पे जो हम सुनते आ रहे हैं, but by anyhow we, if we can do something for them, we can promote them via some good cause. So that is the best thing we can do for the community. Yeah, and I feel like at any given point of time when we get an opportunity where we Yes. can all stand in solidarity and show our Yeah, support, yeah, nothing definitely. like it. सर, आप हमारे एक हीरोज़ फाइटर्स को डेफिनेटली ट्रेन करते हैं, अब हमारे दूसरे हीरोज़ के लिए जब हम ये इवेंट कर रहे हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूँगा कि सही में ज़रूरत है उनको कॉज की, क्योंकि वो हमारे लिए ठंडी बारिश या गर्मी हो वो खड़े रहते हैं, तो उनके फैमिली के लिए, उनके लिए कॉज की ज़रूरत तो है, क्योंकि हम इतना समझो कॉज देंगे उनको, प्रमोट करेंगे, तो उनकी फैमिली के एजुकेशन के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए बहुत एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा वो, तो डेफिनेटली ज़रूरी है। We spoke about fighters, we spoke about our police department, special commando forces, even regular runners. एक बात जब हमेशा याद आती है या फिर ज़्यादा टॉक होता है वो है अबाउट देयर कैजुअलिटीज़। आजकल द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स और पीपल इवन लूजिंग लाइव्स हैव रियली इंक्रीज्ड, और एक तरह से वो कहीं हमारे दिल में स्केयर बैठ जाता है Scare कि बैठ जाता है। हमें कितनी पॉइंट तक ट्रेन करना चाहिए। तो इसके लिए व्हाट वुड यू से आर द इम्पोर्टेंट चेक्स दैट प्री सीजन पे किसी मैराथन रनर को करवाना चाहिए? सो मैम मेडिकल फिटनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें डिफरेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, जिस डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, स्कैनिंग मेथड्स होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशंस होता है। उसके अलावा एक बेसिक थिंग जो मैं बताना चाहूँगी कि लिसन टू योर बॉडी। when your body is telling you you are fatigued, because these are the signals. फीवर क्यों आता है? बिकॉज ये है कि when some infection goes into our body, तो वो बॉडी आपको कैसे बताएगी कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, तो वो फीवर बता के टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो द ब्रेन इज़ गिविंग अ सिग्नल। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि हम फटीक हैं, हम सो नहीं रहे हैं, कंटिन्यूसली मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज मैराथन आने वाला प्री सीजन, ये प्री सीजन 2-3 महीने की जो तैयारी होती है उसमें होता है। बट एट द एंड गुड स्लीप, रेस्ट, हाइड्रेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ मस्ट। तो वट एवर वी आर डूइंग, लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी बोल रही है आप थक गए हो, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यू रिक्वायर रेस्ट। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, तो यार दैट मीन्स यू हैव दैट कैपेसिटी। तो योर ब्रेन ऑलवेज गिव्स यू सम सिग्नल, एंड वी एज ह्यूमन्स अवॉइडिंग दैट सिग्नल्स, एंड वी आर बिहाइंड आर पैशन। सो मैं बोलूँगी कि इसको rather than we enjoy more, rather than take it as a very competitive manner, it will relax your brain, it will give your body some strength, and I think we can do something better with it. No, knowing our signals is extremely important. और आपका पर्सपेक्टिव इसलिए लेना चाहूँगी कि मी आई एम श्योर यू वुड हैव सम एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक पैशनेट क्लाइंट्स एट टाइम्स, एंड योरसेल्फ बीइंग अ इंस्ट्रक्टर आपका काम है कि आप उनको मोटिवेट करोगे, बट वेयर डू यू थिंक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो अभी क्या है कि जब हम मैराथन ट्रेनिंग या फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, तो एक पता होना चाहिए ट्रेनर को भी वो सामने वाला क्लाइंट थक गया है। अगर समझो थक गया और आप वैसे ही उसको ट्रेन करते रहोगे, तो जैसे मैम ने बताया कि फटीग हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो वो एक सिग्नल को भी समझना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने फिटनेस ट्रेनिंग कर लिया और कल भाग लिया, ये डे बाय डे इम्प्रूवमेंट का होता है। वो जैसे आज आपने 20 मिनट किया, एक हफ्ते बाद 25 मिनट करो, 30 मिनट करो, ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ही जाके आप आगे अच्छे से मैराथन और फिटनेस ट्रेनिंग कर पाओगे और अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आगे जाके इंजरी के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। We definitely had great insights on a lot of topics that influence our fitness journey. हमने हमारे ट्रेनिंग के बारे में बात की, किस तरह से क्या खाना चाहिए, किस तरह से वर्कआउट रूटीन करना चाहिए,
But sometimes people tend to forget that as much physical competence, physical training is important, mental well-being is equally important. And what kind of practices, doctor, would you encourage for runners specifically, or people in fitness enthusiasts to follow? So basically, ma'am, to prepare, like our mind should be calm and composed. Like we are planning for a marathon, we are planning for a competitive sport. It's now a competitive sports. People are running for the medals. People are running for there are big budget awards also. So how our mind is calm and composed, how we are managing this stress, it is most important. And इट जस्ट नॉट हैपन्स इन एक महीने में 2 महीने की बात नहीं है. स्लो एंड स्टडी. जैसे फिजिकल हेल्थ को हम रेडी कर रहे हैं, वैसे ही हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा. सो आई वुड सजेस्ट कि मेडिटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन ए वर्किंग professional to compose himself in the stress of the routine day life, the same way the meditation is required for the runners also. I hope sir must be giving these tips to do meditations, like few session calm composing sessions, and if required, if there is too much stress, so we can take the help of psychologist. Nowadays everybody is talking about mental health. Yesterday I saw like Deepika Padukone has become mental health ambassador for India. She is one of the most fit person in our film industry. She is the I matlab like we can't think of ki anybody else who is more fitter than her, but she is speaking about mental health because it is like मैं fit हूँ, that does not mean you are fit. And there is a WHO definition about health. It is written there, physical as well as mental health. तो health आपकी तब complete होती है जब physical और mental health करते हो. तो पहले तो health है, and running is the progress path. तो हम पहले सोचे कि हम रनिंग कर लेंगे, वो नहीं होगा. पहले हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, जिसमें आपके बॉडी के पैरामीटर्स जो मैंने बताया कि आप इन्वेस्टिगेशंस करते हो, कंसल्टेशन करते हो, वो ठीक होने चाहिए. आपका मेंटल वेलबींग ठीक होना चाहिए. मे बी यू मेक योर सेल्फ बाय अ मेडिटेशन और सम डिफरेंट मेथोडोलॉजी. आप जब इस सब पैरामीटर्स पे अच्छे उतरते हो, तो देन द प्रोग्रेस पाथ इज रनिंग, मैराथन एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स. It's very true that for the most complex problems, we have the most simplest solutions. You should just start with meditation. और सर ने भी अपने रूटीन में बताया कैसे वो उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं. We got a medical perspective. From an instructor perspective, as आप काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को ट्रेन करता है. एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एज समबडी हु इज़ वर्किंग क्लोजली विद स्पेशल फोर्सेस, आपने क्या माइंडसेट डिफरेंस देखा है? देखो, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कुछ भी आपको शुरू करने से पहले आपको माइंड में लाना ज़रूरी है. अगर आप माइंड में लाओगे ही नहीं तो आप वर्क कर ही नहीं सकते हो. पहले तो समझो कि आप आज मैंने जैसे बताया कि मुझे एवरी सैटरडे में 30 किलोमीटर भागता हूँ, तो अगले शनिवार का भी प्लान हो जाता है तो मैं मेरे बैक माइंड में डाल देता हूँ और मेंटली एकदम प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे अगले शनिवार को भी 30 किलोमीटर करना है. तो मेंटल हेल्थ ऐसे ही आएगी मेडिटेशन करके. धीरे धीरे आप वर्कआउट स्टार्ट करके ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाओ. ऐसे आपका फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा. तो मैं मानता हूँ कि मेंटली स्ट्रेंथ के लिए स्लो एंड स्टेडी और मेडिटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो मैं एक और इस पर फॉलोअप ये लूँगी कि चेतक कमांडोज को जब आप करते हैं ट्रेन, उनका माइंडसेट किस तरह से होता है? उनका माइंडसेट ऐसे ही करते हैं हम लोग कि भाई आज पहले समझो कि पहले 10 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ लिया, फिर आगे उनको मेंटली और प्रिपेयर करना है. ओके, 10 किलोमीटर रन विथ 5 किलो वेट्स. तो ऐसे धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करते हैं. ग्रेजुअली लोड बढ़ा के मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हम लोग फिट कर सकते हैं. तो अपने आप को माइंड को भी चैलेंज देना ज़रूरी है कि आज 10 किलोमीटर कर लिया तो अगले हफ्ते 12 किलोमीटर करना है. तो आपका दिमाग वो एडप्ट कर लेगा कि 10 के बाद 12 मुझे करना है. तो ऐसे मेंटली हेल्थ इम्प्रूव होगा. डेफिनेटली. समबडी जिसने उतनी मैराथॉन्स नहीं दौड़ी है या फिर रनिंग में उतना, as any of our viewers who want to get into maybe 3 kilometer 5 kilometer runs, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? जब आपने आपकी फर्स्ट मैराथन टू योर 114th मैराथन, उस जर्नी में आपने क्या सीखा और आप आगे क्या बोलेंगे? मैं ऐसा ही बोलूँगा कि दौड़ने में तो हम लोग दौड़ सकते हैं, पर फिटनेस का भी ध्यान रख के, मसल्स का भी ध्यान रख के हम लोग को मैराथन करनी चाहिए. जैसे आज मैंने किया था, तो मैं पहले से फिटनेस पे 96 से कर रहा हूँ, तो मुझे आदत है करने की, क्योंकि मेरा बॉडी और माइंड ट्रेन हो चुका है. मैं बिगनर्स को बोलना चाहूँगा कि आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए. पहले 3 किलोमीटर कीजिए, फिर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. धीरे धीरे आप ग्रेजुअली बढ़ाते जाओगे तो आप हाफ मैराथन तक पहुंच पाओगे. उसके साथ साथ
जैसे मैडम ने भी बोला और मैं भी बोल रहा हूँ कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उठ लिया और दौड़ लिए, ये ऐसा नहीं, ये भी एक तपस्या है। Yeah. इसको भी करना ज़रूरी है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो आप एक दिन में नहीं कर सकते। जैसे मैराथन और फिटनेस में भी ऐसे है कि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करोगे, तभी जाके आप अच्छे से रनर बन पाओगे, विनर हो पाओगे। It's always a process. Or अगर if I had to ask you about the medical process that somebody who wants to start as a fitness enthusiast, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? सो मैम नॉर्मली तो व्हेन वी लाइक मैं अपने बारे में बताऊंगी, आई एम नॉट अ रनर बट आई वांट टू रन दिस ईयर। सो मैंने 3-4 मंथ्स बैक जिम शुरू किया सो दैट आई कैन ट्रेन माई बॉडी फॉर दैट। आई हैड डन स्पोर्ट्स अर्लियर बट इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, देन आई डिड स्विमिंग ऑल्सो बट स्टिल माई मसल स्ट्रेंथ इज नॉट दैट मच गुड। तो आई हैव ए ट्रेनर, ही स्टार्टेड आई जस्ट 1 hour जिमिंग एज वेल एज मेडिटेशन ऑल्सो। सो आई फॉलो सदगुरु, तो उनको थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ, थोड़ा जिम कर लेती हूँ। सो मुझे शुरुआत करनी है 5 किलोमीटर से, तो आई जस्ट वांट टू हैव फन रन, तो मैं 5 किलोमीटर से शुरू करूँगी। बट बिफोर दैट फ्यू थिंग्स आई हैव टू टेक केयर। माई मेडिकल चेकअप शुड बी गुड, like I will go through some blood investigation, some ECG checkup and different things which is required for my body. I will also have a consultation with a dietitian also, whether my diet is proper or not. I will also have a consultation after my reports with the physicians whether I am fit for the run or not. This is how I can start my journey, Yeah. like slow and steady. So 5 Absolutely. kilometer, maybe next year 10 kilometer also. Slow and steady wins the race at the Yeah, end of the day. definitely. You both come from different fields. It's a medical fraternity, fitness enthusiast, but in this entire conversation हमने काफ़ी similarities देखी. अगर आपको एक common point इस दोनों फील्ड में चूज़ करना होता तो कौन सा होगा? सर आप फर्स्ट। फिटनेस और साइंस के बीच में। फिटनेस और साइंस के बीच में तो मेरा तो फिटनेस ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं। Like persistence and resilience. This is common. Yeah, even consistency and discipline. Consistency, resilience and discipline. All 3 things are common in health and fitness. One last question before we leave. One word for the Adani Ahmedabad Marathon. अदानी मैराथन सबको करनी चाहिए क्योंकि एक कॉज के लिए है, हमारे हीरोज़ के लिए है। और एक फिटनेस मतलब आपको प्रूव करना है तो अदानी मैराथन है, कर सकते हो। और एक अच्छी कॉज के लिए, अपने हीरोज़ के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और फिटनेस को और कॉज को प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि सर फिटनेस में बहुत ही पैशनेट है। इफ़ यू आर नॉट एनीवेयर नियर टू स्पोर्ट्स और फिटनेस, आप कौन सा करियर चॉइस चूज़ करते हैं? एक्चुअली में मेरा तो ड्रीम था पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, पर मैं मेरी हाइट की वजह से रह गया, नहीं तो आज मैं खुद पुलिस ऑफिसर होता। राइट, यू आर ऑलवेज रीडायरेक्टेड इज़ व्हाट आई फील इन लाइफ। आपका इफ़ नॉट मेडिकल फ्रेटर्निटी देन? मैं शायद बैडमिंटन प्लेयर होती। आई प्लेड माई नेशनल एट वेरी यंग एज, 6 और 7th क्लास में मैंने मेरा नेशनल खेला था। देन माई फादर टोल्ड कि बेटा अभी डॉक्टर बनना है, बाद में खेलना और उसके अलावा मैंने कभी सोचा नहीं मैं। सो राइट नाउ आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग, बट उसके साथ में ये सब चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक आई थिंक each and every kid should do sports. So I'm a mother of 2 kids. So why I'm taking care of myself too, I can show my daughters ki you have to work hard, you have to take care of your family, you have to take care of your health also, your mental health, your physical health, because what we are doing is the path for the new generation. New generation, yeah. Even your alternate options are somewhere connected to Connected. fitness only. Yes, So it was really nice having you. But if this was all a serious conversation, we'll do a very fun segment with both of you. It's like a rapid fire round, and it's like a competition. Who will give the answer most quickly? Your go-to pre-run meal: Banana and nuts. coffee or water before run? Water. One thing you will never skip in training: Meditation. favorite time of the day to run? Morning. Hill sprints or long slow runs? Long slow runs. Is your biggest fitness inspiration? My mother. One health myth you wish people would stop believing? I look fit, that does not mean you are fit. Recovery day routine. Sleeping. One word to describe what running means to you. I would say fitness means to you. Like fitness means to you, be happy. मैम ने बहुत अच्छा किया है। सेम ही होगा। नहीं आप, you can choose different.
Ready? Your morning routine. जल्दी उठना, ट्रेनिंग करना, Coffee or water before the कॉफ़ी। run? What's a one cheat meal you have after every run? चीट मील तो मैं नहीं लेता हूँ, पर ज़्यादातर बनाना और प्रोटीन्स लेता हूँ। Cheat meal? Banana is not a cheat meal. चीट मील मेरा नहीं होता है। पिज्ज़ा तो खाते होगे कभी? पिज़्ज़ा हाँ, वीक में एक बार। दैट इज चीट। Morning run or evening run? मॉर्निंग रन। So बची तो जलेबी फाफा नहीं खाओ ना? सीरियसली नहीं दिखा। नहीं. Your biggest fitness inspiration? हनुमान जी। One thing you never skip in training? ऑलमोस्ट You don't skip anything? That's discipline. Uphill or downhill? अपहिल। One thing you always teach your clients? बस एकदम फिट रहना है, मोटिवेशन के साथ वर्कआउट करना है और 100% डेडिकेशन देना है। Best way for a recovery day? स्लीप। One word to describe what running means to you? बस दौड़ते रहो और लोगों को इंस्पायर करते रहो। Inspiration, be happy. On that note, great insights. It was very insightful and I would say an encouraging conversation for all our viewers. I think इस podcast को सुन के लोगों को ये जानने मिलेगा कि we definitely focus on the discipline and the dedication part, consistency part, but it's equally important for us to think about the nutrition, our well-being, and also a very great insight into our special commando forces and an inspiration that next time we should also run for our fighters, for our own fighter, a warrior spirit that is in us. So thank you so much for joining with us. It was great. And on that note, see you next episode.